السلام علیکم. آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پروجیکٹ ماڈیولس اینڈ آبجیکٹو ان ریکوائرمنٹ انجینئرنگ لیکچر نمبر 10. تو اس میں ہمارا پروجیکٹ ماڈیولس آبجیکٹو کی ایک پروجیکٹ کو جو ہم بلڈ کرتے ہیں اس کے کتنے ماڈیول بنتے ہیں اور پھر ہمارا جو مین آبجیکٹو ہے ہم اس کو کس طرح اچیو کر رہے ہیں. تو اردو میں ہے the purpose of presentation is to provide leaders and team members of projects, committees or task forces with advanced techniques and practical skills for initiating, planning, tracking, controlling and evaluating any kind or size of project. تو پروجیکٹ کو ماڈیول میں ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہوتا ہے اور جو آبجیکٹو ہے اس کو کس طرح اچیو کرنا ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہم اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اس میں آتے ہیں، ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ کو جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ریکوائرمنٹ گیدرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایس کے بالکل اسٹارٹ میں ہوتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے، تو سب سے پہلے تین چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ٹائم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو لمٹس جو باؤنڈریز ہمیں دیے گئے ہوتے ہیں اسی میں ہمیں پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. پھر بجٹ ہے کہ اس پہ کتنا خرچ آئے گا، کتنا کاسٹ اس پہ آئے گی، اس سے ہم ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اور پھر جو اسٹیک ہولڈر جو کسٹمر ہے وہ کس طرح پروجیکٹ چاہتا ہے، کیا گول ہے، کس طرح یہ ایفیشینٹ ہوگا. تو ان تینوں چیزوں پہ کسی حالت میں بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ جب ہم کمپرومائز نہیں کریں گے تو جو درمیان میں یہ کوالٹی ہے کوالٹی اچھی ہوگی. ایک ٹائم ود ان ٹائم کام ختم کرنا ہوگا. دوسرا بجٹ ہے کہ اس پہ کتنا کاسٹ آئے گا، کاسٹ یہ اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. دوسرا اسکوپ ہے، اسکوپ کہ اس پروجیکٹ کا اسکوپ کیا ہے، تو یہ گولس جو ہے جو ہم اس کو اچیو کر رہے ہیں سب اس پہ ایگریڈ ہے. یعنی تب یہ تینوں جو تینوں ستون ہے اسکوپ ٹائم کاسٹ مل کے کوالٹی کو آگے ترتیب دے گا کہ اس پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے یہ کتنی اچھی ہوگی کتنی اچھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس کو سامنے رکھ کے ہم آگے لے کے جانا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پروجیکٹ کو ہمیں ماڈیول میں ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. ماڈیولر ڈیولپمنٹ جب ہو جاتی ہے تو ماڈیولر وائز ہم اس کی ہر ایک ماڈیول کی یونٹ ٹیسٹنگ بھی ہم کرتے ہیں. پھر بعد میں کہیں جا کے امپلیمنٹیشن کے بعد ہم اس کی انٹیگریشن ٹیسٹنگ کرتے ہیں، سارے ماڈیولس کو اکٹھا کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ پروجیکٹ کو کس طرح مینیج کرنا ہے، کس طرح ہم نے اس کو ماڈیولس میں ترتیب دینا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے انالیسس کرنی ہے. جس طرح ہم ریکوائرمنٹ انجینئرنگ ریکوائرمنٹ جب گیدر کرتے ہیں اس کو ہم پھر را ڈیٹا ہمیں ملتا ہے، ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں. جب ہم فلٹر کر لیتے ہیں پھر اس کی ویلیویشن کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے ڈیٹا کو فلٹر کرتے ہیں. پھر کہیں جا کے ڈیزائن بنتا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. پروجیکٹ کو ہم اس طرح ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل سے ہم اس کو گزارتے ہیں تبھی ایک پروڈکٹ میں بنتا ہے، ہمیں ملتا ہے. واٹ از اے پروجیکٹ؟ ایکچولی پروجیکٹ ہے کیا؟ پروجیکٹ ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس ٹیمپرری ہیونگ اے اسٹارٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ. اس کا ایک اسٹارٹ ہوتا ہے اور دوسرا اینڈ ڈیٹ ہوتا ہے. اسٹارٹنگ کیا ہوتا ہے، جس طرح آپ واٹر فال ماڈل میں ریکوائرمنٹ گیدرنگ آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور جو ڈاکومنٹیشن سب ڈی ایل سی کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کا اینڈنگ. تو ان 5 ریکوائرمنٹس گیدرنگ، پھر اس کا ڈیزائن، تیسرا اس کا امپلیمنٹیشن، بتاؤ اس کی ٹیسٹنگ، پانچواں ڈاکومنٹیشن. تو یہ اسے جب گزرتا ہے تو اسٹارٹ اور اینڈنگ ڈیٹ اس کا تب پتہ لگتا ہے. ایک یونیک مطلب ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں تو ایک یونیک کام آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو بے شک آپ ایگزسٹنگ ڈیٹا کو اٹھا کے اسے کچھ، مگر آپ جو چیز اچیو کر رہے ہیں وہ ایک یونیک میں ہوگی پروجیکٹ میں، یا اس میں چینج لا رہا ہوگا. ایک ان نون ایلیمنٹس مل کے ایک پروڈکٹ ترتیب جائے گا جس میں آپ کو رسک مینجمنٹ ہے، جو رسک بھی ہے، چیز اچیو ہوگا نہیں ہوگا، کتنے ٹائم میں ہوگا، بجٹ اس پہ لاگت کتنی آئے گی، یہ سب چیزیں اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے. تو جنرلی پروجیکٹس آر فارم ٹو سالو اے پرابلم اور ٹیک ایڈوانٹیج آف این اپرچونٹی. ٹھیک ہے نا. تو پروجیکٹ کس طرح بنتے ہیں کہ کسی پرابلم کو ہم سالو کرنا چاہتے ہیں وہ، یا کسی اپرچونٹی سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں،
इसी तरह हमारे पास प्रोजेक्ट्स बनते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह देखते हैं कि बिजनेस इज यूजुअल एक्टिविटीज कैन ऑफन बी मिस्टेकन फॉर प्रोजेक्ट्स। ये सारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कभी कभार हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। एक चीज़ को हम टोटली ये तस्वर करते हैं कि ये हमारे लिए बिजनेस ही रेवेन्यू जनरेट करके देगा हर हाल में। तो ज़रूरी नहीं कि वो एक चीज़ आप बना ले वो सिर्फ उसी जो टारगेट्स आपने रखे हो वही वही बिजनेस कर ले। कभी कभार हम भी कर सकते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं जैसा गेमिंग वगैरह है। Generally, it is the uniqueness of the activity that is the deciding factor. That is, do we do this every year? Yeah, if so, then it is not truly a project, although you can use project methods to get it done. ठीक है ना? मतलब कि ये एक यूनिकनेस एक्टिविटी का क्या डू वी डू दिस एवरी ईयर मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप यूनिक कुछ एक चीज़ आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अवेलेबल है, आप उसमें से कुछ चीज़ों को अपडेट कुछ फीचर्स अपडेट कर लेते हैं। इसका मतलब नहीं है ये नहीं है कि आपने पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, आप साल ब साल उसको सिंपल उसमें फीचर्स नए ला रहे हैं, नई चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, तो एक यूनिकनेस आप उसमें ला रहे हैं। तो इस तरह प्रोजेक्ट कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, हम कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह भी नहीं है कि स्क्रैच से लेके एंड तक हम जब जाते हैं हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को उठा के उससे हम नया चीज़ बनाते हैं, ये भी हमारे पास प्रोजेक्ट की उसमें आ जाते हैं। मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे जहन में आते हैं। आर दिस प्रोजेक्ट बिल्डिंग अ डेक, इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू सिस्टम, मूविंग द लॉन, प्लानिंग अ इस तरह के क्वेश्चन जहन में आ जाते हैं कि प्लानिंग स्टूडेंट ग्रेजुएशन ये प्रोजेक्ट है, यस नो मतलब कि इस तरह के ये तो आप फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली जहन में रखें प्लानिंग वेडिंग, ये एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल वेडिंग वेडिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कागज़ और पेन उठा के मेहमानों का लिस्ट बना लेते सारे सब कुछ प्लान बनाते हैं। तो इस तरह जब आप बिल्डिंग बनाते हैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखते हो वो प्रोजेक्ट्स है कुछ इस तरह की चीज़ें। तो सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कहते हैं कि जो चीज़ को हम पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से गुजरते हैं तो प्रोडक्ट हमें पास जो बनता है हम उसको प्रोजेक्ट हम अपनी ज़ुबान में उसको कहते हैं। ठीक है, जिस तरह कॉमन प्रोजेक्ट टर्म में हमारे पास आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट डिराइव आपके पास टेंजिबल थिंग दैट द प्रोजेक्ट प्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल milestones होते हैं कि dates by which major activities are performed, task क्या है, also called actions, activities undertaken during the project, कुछ risks हैं, कुछ issues हैं, कुछ stakeholders or any person who may be affected by your project। common project terms हमारे पास ये आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि derived लेवल्स डिराइव करते हैं, माइलस्टोन आप कि कितने टाइम पे आपने ये एक्टिविटीज़ ख़त्म करनी है, टास्क आपके क्या हैं, रिस्क इसमें कितना इन्वॉल्व है, इश्यूज़ क्या रिस्क की वजह से आएंगी। तो चार्ट आप ड्रा करेंगे जिसमें आपको पूरे प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट का पता चलेगा और स्टेक होल्डर उसमें कौन से इन्वॉल्व है, इस तरह के टर्म्स प्रोजेक्ट हमारे पास आते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, हम इसमें हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि इसमें हम बिल्डिंग अ डेक, प्लान कंसेंट फ्रॉम द डेक। आप एक चीज़ को बनाते हैं उसमें आप फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग करते हैं, प्लान अप्रूव होता है, फिर सबमिशन होती है, वो अप्रूव होता है, कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कुछ बुकिंग करते हैं, इक्विपमेंट्स आइडेंटिफिकेशन होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, डेक फिर टेस्टिंग होती है। मतलब कि आप 1 जून से लेकर 28 जुलाई तक आप इनमें से ये सारी एक्टिविटीज़ की। तो फलां आपने प्लानिंग की कि आपने ये चीज़ें करना है, टास्क इसमें क्या है और सब टास्क उसमें के प्लान ड्राफ्ट होता है, प्लान अप्रूव होता है, इस तरह के टास्क आपके पास आ जाती है। तो ये एक बिल्डिंग की डेक के लिए आपने प्लानिंग करनी है। ठीक है ना, हाउस एट एवेन्यू ड्राइव फॉर एग्जाम्पल इसमें आप घर बनाए तो फाउंडेशन एक्सटर्नल कंस्ट्रक्टर कौन होगा, इंटरनल कंस्ट्रक्टर कौन है, रूफ में सर्विसेज क्या है, यार्ड और एक्सेस, फिर आपने इंटरनल कंस्ट्रक्शन में वॉल फ्लोरिंग सीलिंग है, ये सारे आपने कुछ डायग्राम के थ्रू एक चीज़ को स्ट्रक्चर किया है कि आप क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट है घर बनाना, तो आपने पहले उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। मॉड्यूल में जब आप डिवाइड कर लेंगे फिर आप एंड में देखेंगे कि कौन सा मॉड्यूल फर्दर वो डिवाइड हो सकता है, तो आप उसको और ये फर्दर भी फिर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह आपके प्रोजेक्ट की जो हो आपके जो गोल्स हैं वो आप अचीव करने होते हैं। सर्विसेज में प्लम्बिंग, किचन, बाथरूम, ये सारी चीज़ें
आ जाती हैं, ठीक है। वर्क फॉर एग्जाम्पल वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, वर्क काम को आपने स्ट्रक्चर में डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हायरार्की ऑफ टास्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, जिस तरह हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इनहेरिटेंस क्या करते हैं, हम उसको चाइल्ड्स सब चाइल्ड्स उसमें टास्क को डिवाइड करते हैं, तो फिर आपको हमें वो सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, हायरार्की की शक्ल में होता है। और हर एक टास्क को आप छोटे छोटे टास्क को डिवाइड करते हैं, वो मैनेज करना भी आसान होता है, और उस पर जो टास्क आती है वो भी आसान होता है। टास्क की डिपेंडेंसीज क्या है, कुछ टास्क स्टार्ट में होती है, कुछ एट द सेम टाइम, कुछ एंड में आ जाती है, कुछ स्टार्ट ही नहीं होती, मतलब किस तरह मुख्तलिफ किस्म के टास्क की नेचर को सामने रख के हम वो करते हैं। एस्टिमेट टास्क ड्यूरेशन एंड कॉस्ट में भी इनटू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है, तो फिर वो क्या होता है, वो हमारे लिए मैनेज करना भी आसान होता है, और उस पर जितनी लागत आती है एस्टिमेशन वगैरह हम आसानी से लगा सकते हैं। रिस्क क्या है, प्लान इज नॉट अप्रूव्ड आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ फीडबैक, एक चीज़ में आप लगे हम आपको अप्रूवल नहीं मिलती, तो ये रिस्क भी है। रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल एट द रिक्वायर्ड टाइम, ये भी रिस्क में है। प्लान इज नॉट गिवन कंसेंट, प्लानिंग की कुछ वो नहीं है, अहमियत नहीं है, ठीक है, उसको अहमियत नहीं दी गई। फॉर ईच ऑफ द एबो यू शुड हैव अ contingency plan or do some activity that may prevent it happening in the first place। तो आपको कुछ इस तरह की प्लानिंग करनी है, मुतबादिल ज़राए ढूँढने होंगे, अगर ये तीनों चीज़ें आप हैपन हो गई, अगर हो गई, तो आपको फिर प्रोजेक्ट की यानी स्टार्ट करना, मतलब कि अप्रूवल या सारी चीज़ें नहीं आपको नहीं हो रही, तो फिर आपको अल्टरनेटिव प्लान करना होगा। इश्यूज़ क्या है कि इफ़ एनी ऑफ वो एक्चुअली हैपन्स एंड इट बिकम्स एन इशू टू सॉल्व, फिर ये तो आपके लिए सॉल्व करना लाज़मी है हर हाल में, अदरवाइज़ आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकेंगे। इस तरह के चार्ट में हम क्या करें, टास्क देते स्टार्टिंग डेज, फिनिशिंग डेट, ऑनर्स कौन है इसमें, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हैं, ये चार्ट में हमें सब कुछ डेट्स का भी पता चल जाए कितने दिनों में वो होगा। बिल्डिंग 5 दिन लेगा, डिज़ाइन 3 दिन, रिसर्च 2, टेस्ट 2, डॉक्यूमेंटेशन 12 दिन, फॉर ये सारे फिनिशिंग इन डेट्स पे होगा, और ये इनके ऑनर्स हैं। स्टेक होल्डर कौन है, हाउस ओनर, बिल्डिंग या कौन सी सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। A successful project manager must simultaneously manage the four basic elements of a project। ठीक है, अच्छा और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो ये चार चीज़ों को बहुत होशियारी से डील करेगा कि अवेलेबल रिसोर्सेज के विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज विद इन जो टाइम उसको मिला है और जितना पैसे उसको मिले हैं, तो उसमें उसने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कि स्कोप क्या है, मतलब कि आपको गोल्स पहले से क्लियर हो, रिसोर्सेज आपको पहले से पता हो, टाइम पता हो, मनी मतलब कितना बजट है उसका भी पता हो, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है, आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ईच मस्ट बी मैनेज इफेक्टिवली, ठीक है ना, ऑल मस्ट बी मैनेज टुगेदर इन द प्रोजेक्ट टू बी सक्सेसफुल। तो सब चीज़ों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, टाइम, मनी, रिसोर्सेज और उसका जो स्कोप है, तो हर एक जो एलिमेंट है वो अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, जब अगर आपको प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रेट चाहिए, ठीक है ना, ये सारे इसमें आ जाती हैं। कॉलम इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि उसके मॉड्यूल्स आपस में इंटर रिलेटेड है, एक तरफ पे डिपेंडेंट है, कि एक प्रोजेक्ट लीडर होता है, वो क्या करता है, प्रोजेक्ट के गोल्स क्लियर हो जाते हैं पहले से, फिर वो स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्शन होता है, इस प्रोजेक्ट लीडर का वर्क प्लान एंड टाइमिंग्स के साथ इश्यूज, इसमें क्या है जो हमने पहले से भी डिस्कस की, टीम आप क्या कौन सी होनी चाहिए, क्रिटिकल डिसीजन भी दरम्यान में लेने पड़ते हैं, रिसोर्सेज और बजट का पता होना चाहिए, बिजनेस नीड्स, और ये आप इसमें भी एक दूसरे का इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम इस तरह करते हैं, ये प्रोजेक्ट गोल क्लियर हो जाते हैं, स्टेक होल्डर का पता चल जाता है, प्लानिंग और स्टार्टिंग एंडिंग टाइम्स का पता चलता है, कौन से इस रिस्क है, इशूज है, अप्रूवल होती है नहीं, कितना टीम मेंबर आप कितने बंदों पे मुश्तमिल हैं, क्रिटिकल डिसीजन, ये सारी चीज़ें उसमें हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है कि अ पर्सन विद अ डाइवर्स सेट ऑफ स्किल्स, मैनेजमेंट, लीडरशिप, टेक्निकल, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप, who is responsible for initiating the project, planning the project, executing the project, controlling the project, monitoring the project and closing down a project।
ये सारी खसूसियात होती है। वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो सब कुछ चला रहा होता है, सब टीम मेंबर के साथ उसमें कांटेक्ट में होता है। Project managers are essentially jugglers, मतलब कि इसका मतलब है कि they must make sure that everything keeps to task, that potential issues are quickly eliminated, and the project is delivered on time, all the while making sure everyone knows what is happening and the project quality and budget are acceptable. Specifically, they direct all activities required to successfully meet the project objective. प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव सारे एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर रहा होता है कि प्रोजेक्ट की जितनी भी ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए। वो रिस्क को मैनेज करता है कि स्कैनिंग अहेड फॉर पोटेंशियल इश्यूज एंड रिजॉल्विंग देम बिफोर दे बिकम अ प्रॉब्लम। ठीक है, रिस्क को पहले से स्कैन कर रहा होता है कि फ्यूचर में आ रहा हो और उसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे इससे पहले कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना के रिकमेंडिंग अल्टरनेटिव अप्रोचेस, alternative approaches for recommend method to solve the problem and arise and providing guidance project sponsor। ठीक है, alternative solution वो ढूंढ रहा होता है और track and report project progress, उसको वो मॉनिटर भी कर रहा होता है कि प्रोजेक्ट जो किस तरह जा रही है और उसकी रिपोर्टिंग भी देख रहे हो और कम्युनिकेट टू ऑल स्टेक होल्डर्स इन द प्रोजेक्ट। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें उनके साथ वो क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेशन में भी रहता है कि कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है और कितना आगे इसमें कंटिन्यू होना। ठीक है, ultimate responsible for the project success or plan and act, focus on the project's end and be a manager and lead। ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम होता है कि आखिरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके उसमें आती है, इन सब टीम मेंबर के साथ वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होता है, प्रोजेक्ट फोकस ऑन द प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग कर रहा होता है और एज अ मैनेजर और लीडिंग रोल भी वो प्ले कर रहा होता है। प्रोजेक्ट इनिशिएशन क्या है कि इनिशिएशन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज where the success of the entire project depends on how clearly and completely the terms of reference are established। For example, प्रोजेक्ट की जो स्पॉन्सर कौन है, लाइंस ऑफ अथॉरिटी किसके पास है, उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सब सारा का सारा काम इस पे डिपेंड करता है। जैसा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, आपने सही डेटा इकट्ठा किया, आपको गोल्स पहले से सब कुछ क्लियर है, स्टेक होल्डर के साथ आप मीटिंग में रहते हैं, आपको स्टार्ट में सब कुछ क्लियर है, तभी आप एक चीज़ को सही सिमत में लेके जा सकेंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट की जो इनिशिएशन है इनिशिएटिव आपने सही नहीं लिया, आपको अनसर्टन स्टार्ट आपने ले लिया, तो एंड में जो प्रॉब्लम्स है वो आपको आएंगे और आप वो सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकेंगे जो कस्टमर या स्टेक होल्डर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट इनिशिएशन में क्या कंस्ट्रेंट्स, कास्ट, बजट, उसमें कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, कास्ट बजट कितना है, या रिसोर्सेज कौन से आप यूज़ करेंगे, डिलीवरेबल मतलब कि किस टाइम आपने उसको डिलीवर करना है, एंड टाइम क्या होगा, फेज कितने फेजेस और टाइम स्केल, उसके लिए आपने तयन करना होता है। कुछ स्ट्रेटजीज मेथडोलॉजीज को आप अपनाएंगे कि आपने उसको लेके जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि आप वाटरफॉल मॉडल है, स्पायरल है, कौन सा आपने कितना रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, अप्रूव नहीं होता, दरमियान में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब प्रोजेक्ट इनिशिएशन में ये सारी बातें सब स्टार्ट में आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये सब चीज़ों ये सब कुछ आपके क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर नहीं, कोई एक दो पॉइंट्स भी क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर आपने एक कंप्लीट और एफिशिएंट प्रोडक्ट को कंप्लीट करना है। Characteristics of projects, प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियत है कि प्रोजेक्ट कंटेन्स अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। समझ आ गई ना, द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्कोप। स्कोप का मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्केड्यूलिंग और एंड कॉस्ट। ये रिक्वायरमेंट्स का भी पता चल जाए और उसका स्केड्यूल का भी पता चल जाए कि कितने टाइम में इसने कंप्लीट होना है और कितनी कास्ट इस पे आएगी। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल अ प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट विद अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट टास्क। आप मॉड्यूल्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और एक प्रोजेक्ट यूजेस वेरियस रिसोर्सेज टू कैरी आउट दीज टास्क। तो मुख्तलिफ रिसोर्सेज वो यूज़ करता है कि प्रोजेक्ट कौन सा सॉफ्टवेयर में आपने इसको डेवलप करना है,
कौन सा हार्डवेयर है, मतलब है कि किस तरह के रिसोर्सेज है जिसको आपने एडॉप्ट किया और आप इस प्रोडक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज जो भी चीज़ें हैं वो उसमें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। A project has a definite start date and an expected completion date, ठीक है ना। तो आपने जब एक प्रोजेक्ट को, हम एक सॉफ्टवेयर की आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट बनाना है तो उसका स्टार्टिंग डेट भी होना चाहिए और उसका एंडिंग डेट भी होना चाहिए। विद इन वीक आपने काम करना है, 10 दिन में, विद इन 30 डेज, विद इन 2 मंथ्स। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए इस तरह कास्ट और एफिशिएंसी के साथ के कितना लागत इस पे आएगा और कितना ये आपको इसको मोस्ट efficient product बनाना होगा। The actual completion date may not always be the same as the expected date। समझ, तो इसमें तजाद आ सकती है कि आपको 10 दिन दिए गए, शायद वो 1-2 दिन ऊपर ले लें। ये भी मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ में फ़र्क होता है। आपको एक डेट दिया है मगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। A project is a one time or unique endeavor, मतलब कि एक वन टाइम में ज़रूरी है कि वो कंप्लीट हो जाए। उसकी वर्जन्स आप इसके वर्जन बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब इस पे रिव्यूज आएंगे, इसको आगे देखा जाएगा, इसकी में खामियां आएगी, तो ये सारी चीज़ें इसको बार बार चेक करती जाएंगी और उसमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे खामियां हैं। तो उसके दूसरे तीसरा चौथा वर्जन बन सकते हैं, बनेंगे। वन टाइम जो है कि वन टाइम अपने और वो कंप्लीशन तक पहुंच गए। अब प्रोजेक्ट है कस्टमर, सो व्हाई डू प्रोजेक्ट फेल। अगर उसके कस्टमर है तो प्रोजेक्ट फिर फेल क्यों होते हैं। अब उसके कस्टमर है तो प्रोजेक्ट इस वजह से फेल होते हैं जब स्टार्ट में आप फॉर एग्जांपल आप पहले से श्योर ना हो रिक्वायरमेंट्स की सतह पे, आपको पता आप सारे पॉइंट्स जिस तरह हमने पहले डिस्कस किए कि आपको पहले से अनसर्टन हो, आप एक ब्लाइंड स्टार्ट ले लो, ब्लाइंडली एक चीज़ बना रहे होते हैं, ना कस्टमर क्लियर है ना आप क्लियर है, और दरमियान में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो बहुत से वजूहत हो सकती हैं एक प्रोजेक्ट के फेल होने में। इस तरह हमने कहा कि रिस्क और इश्यूज कि आपको अप्रूवल नहीं मिलता, आपको फॉर एग्जांपल आप और कस्टमर के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, आपने एक चीज़ पर बात की है, टाइम लिमिट एक था और आपने दूसरा अडॉप्ट कर लिया, दरमियान में ये है कि कस्टमर भी भाग सकता है या फॉर एग्जांपल आप भी आपको भी इश्यूज आ सकते हैं, तो मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है प्रोजेक्ट फेलिंग के लिए। Cause of project failure is reported by top 100 managers। देखिए कि failed communication जिस तरह मैंने बात की, lack of कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन गैप है तो तकरीबन 58% तक, lack of planning सही नहीं की तो almost approximately 39%, poor quality control आपने सही नहीं की तो तकरीबन 35% तक। तो ये सारी वजूहत हो सकती हैं एक प्रोजेक्ट की फेलियर की। Why do projects fail? Poor project and program management discipline। समझ आ गया क्या? और एक प्रोग्राम मैनेजमेंट डिसिप्लिन जो आपने स्टाफ हायर किया है, तो और दूसरे के प्रोजेक्ट का मतलब है कि प्रोजेक्ट के लिए आपने पहले से फिजिबिलिटी स्टडी नहीं की, ना आपके पास उस तरह के आपने उसको ये ना स्टडी किया और ना आपको गोल्स पहले से क्लियर है। लेक ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल सपोर्ट आपको नहीं मिला, जो हायर अथॉरिटीज है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अराउंड टीम मेंबर्स, मतलब कि आपको काम किसी प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल आप इसका मतलब इस तरह कि आप प्रोग्रामर से काम करना चाहते हैं और आपने रॉन्ग प्रोग्राम की जगह आपने रॉन्ग पर्सन को टास्क दिया है, समझ गए? काम किसी एक से करवाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपने डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं जो ईएनटी जो हार्ट सर्जरी के लिए आप एक डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं और आप उसके बारे बजाय न्यूरो सर्जन के पास चले गए। तो इसकी मिसाल भी इस तरह की आपको टीम मेंबर भी सही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन जो ऑलमोस्ट 60% रेशो था इसका। नो मेजर्स फॉर इवेलुएटिंग द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके पास कोई मेजरमेंट कुछ इस तरह स्टैंडर्ड टूल नहीं है कि आपको दरमियान भी पता चल सके कि आप सही सीमत में जा रहे हैं या नहीं। नो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मतलब कि रिस्क को किस तरह हैंडल करना है उसका भी आपके पास भी होने है। इनएबिलिटी टू मैनेज चेंज, तो ये सारे फैक्टर्स आपके पास आ जाए जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल होता है। Project has a degree of uncertainty। समझ आए? In project planning, many assumptions are made regarding access to resources। आपके रिसोर्सेज तक कितना एक्सेस है, रिसोर्स कैपेबिलिटी आपके पास कितनी है,
impact of environmental factors. تو یہ ساری چیزیں uncertainty کو جنم دیتی ہیں. So these assumptions are not always accurate. ضروری ہے کہ یہ accurate ہے. اور وجوہات بھی possible ہے. Requires project managers to reassess and trade off between requirements, cost and time. Above all, be proactive. مطلب کہ ریکوائرمنٹس کیا ہے، کاسٹ کتنے ہے یہ، اور کتنے ٹائم میں. تو یہ انسرٹنٹی کا تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں یہ تو جنم دیتی ہیں. اور بھی وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو پروجیکٹ ہے وہ انسرٹن ہو جاتا ہے، تو پھر اینڈ میں وہ کیا پروجیکٹ فیلر کی طرف وہ لیڈ کرتا ہے. میئرنگ پروجیکٹ سکسیس کو ہم کس طرح میئر کرتے ہیں کہ وی میئر دا success of a project by using four major project constraints specifically. Scope کیا ہے اس کا، requirements، cost اس پہ کتنے آئیں گے، اس کی ٹائمنگ، اسٹارٹ اینڈنگ ٹائمنگ کیا ہوگی، کسٹمر سیٹسفیکشن مطلب کوالٹی اینڈ پرفارم کہ کسٹمر اس کی کوالٹی اور پرفارمنس سے کتنا سیٹسفائڈ ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے پروجیکٹ کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ آپ میئر کر سکتے ہیں. کہ اسکوپ کیا ہے فرم ریکوائرمنٹ، کاسٹ کتنی اس پہ آپ کی کہ آپ نے جو کہا کہ ود ان اس بجٹ میں ختم ہو گیا کہ نہیں، کتنے ٹائم میں، اور کسٹمر کتنا سیٹسفائی ہے. تو جب یہ چاروں کنسٹرینٹ آپ کو سیٹسفائی ہوگی مطلب کہ آپ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ زیادہ ہے. پروجیکٹ اسکوپ کا مطلب کیا ہے، آل دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ دیٹ از ڈیولپر ہے بین کمپلیٹ. تمام ماڈیول جو بھی کسٹمر کو چاہیے تو وہ کمپلیٹ ہو گئے. کاسٹ اس پہ کتنا آ گیا کہ فار ایگزامپل اسٹارٹ میں آپ اس پہ ایگریڈ ہوئے تھے وہ اس بجٹ میں کمپلیٹ ہو گیا، اور جو ٹائم آپ نے چاہتے تھے اسٹارٹنگ اینڈنگ اس میں وہ اسکیجولنگ کے مطابق ہو گیا. اور کسٹمر کتنا سیٹسفائی ہے، ہیپی ہے کہ آپ نے کوالٹی آف دا پروجیکٹ کو مد نظر رکھا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ پروجیکٹ کنسٹرینٹ آ جاتے ہیں. پروجیکٹ سکسیس مطلب کوئی گولڈن رولس ہے کہ رول 1 کیا ہے، دو شیل گین کنسنسس آن پروجیکٹ آؤٹ کم. 2 thou shall build the best team possible. مطلب کہ آن پروجیکٹ آؤٹ کم، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس کی گولس کیا ہے، یہ سب کچھ پہلے سے کلیئر ہونا چاہیے. دوسرا کہ آپ کا جو ٹیمس ہے وہ بیسٹ پاسبل ٹیم ممبر ہونے چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ thou shall develop a comprehensive viable plan and keep it up to date. کہ آپ کو ایک کمپریہنسو اور ڈیٹیل پلاننگ کرنی پڑے گی، فیزیبلٹی اسٹڈی کرنی پڑے گی، کتنے ریسورسز آپ کے پروجیکٹ کے لیے چاہیے، کون کتنے افراد اس کو کمپلیٹ کریں گے، کتنے ٹائم میں، کتنا بجٹ، یہ ساری سب کچھ پہلے سے طے ہونا چاہیے. Thou shall determine how much stuff you really need to get complete the project. ٹھیک ہے، یہ چار رول انہوں نے بتائے ہیں. یہی تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، مگر انہوں نے یہاں پہ رولس میں ڈیفائن کر دیا. کاسٹ، ٹائم، اور کتنے کاسٹ اس پہ آئے گا، کتنا ٹائم، اور کوالٹی. یہ تین چیزوں ہیں، اسی پہ کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. رول 5 شیل ہیو اے ریئلسٹک اسکیجول. مطلب آپ کو پریکٹیکل اسکیجول ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسکیجول ہے، اس میں آپ کو اس چیز کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹرائی ٹو ڈو مور دین کین بی ڈن. ورنہ دو ول ناٹ ٹرائی ٹو ڈو مور دین ون کین بی ڈن. مطلب ایک چیز پہ فوکس کر لیں، ملٹیپل سولوشن نہ ڈھونڈیں، پھر آپ کا جو گول ہے وہ اچیو نہیں ہوگا. دو ول ریمبر دیٹ پیپل کاؤنٹ. مطلب کہ یہ لوگ، افراد کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کتنے لوگوں میں آپ نے یہ چیز کمپلیٹ کیا ہے، کتنے ٹیم ممبر آپ نے. ول گین دا فارمل اینڈ آن گوئنگ سپورٹ آف مینجمنٹ اینڈ اسٹیک ہولڈر. یہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کمیونیکیشن، یہ ڈفرنس تو نہیں آ رہا ہے. مسٹ بی ولنگ ٹو چینج ایکسیپٹ کرتا ہے آپ کا پروجیکٹ کمپیٹیبل ہے فیوچر میں. مسٹ کیپ ادرس انفارم آف واٹ یو آر اپ ٹو. سارے ٹیم ممبرس کو پتہ ہونا چاہیے، کمیونیکیشن سب کو آپ اس میں ہونے چاہیے. ایک دوسرے پہ سب ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، ریکوائرمنٹ گیدرنگ والے کو ڈیزائن کا پتہ ہونا چاہیے، ڈیزائن والے کو امپلیمنٹیشن کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہونا چاہیے. ٹیسٹنگ جی میں جتنے بھی پوائنٹ فائدے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہونے چاہیے. مسٹ بی ولنگ ٹو ٹرائی نیو تھنگس، مسٹ بیکم اے لیڈر. یہ ساری خصوصیات اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں. تو یہ ہمارا تھا آج کا لیکچر، لیکچر نمبر آئی تھنک سو لیکچر نمبر 11 ہے. تو ابھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. تو فائنل ٹرم کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ کمپلیٹ ہو سکے وہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ.